So in XML, the advantage is we have seen that XML is a platform and programming language independent. So you can exchange the data between two machines or two languages. Then it also support Unicode, which allows almost any information in a written human language to be communicated. Again, the data stored and transported using XML can be changed at any point of time without affecting the data representation. डेटा का रिप्रेजेंटेशन चेंज करने की जरूरत नहीं, लेकिन इनसाइड ऑफ डेटा यू कैन चेंज. XML can also validate by using DTD and XML schema, and you can share the data very easily between two machines because it is a platform independent in nature. But still there are some disadvantages or limitations of XML. Very first is the syntax of XML is very verbose and redundant as compared to the other data transmission format. Second, the redundancy in XML syntax is very huge, due to which if your data that you want to transport or share is very large, then it will getting a higher cost of transportation if you are using XML. Again, XML document is less readable as compared to the other data transmission format like JSON. XML does not support array. जैसे अगर आपका रोल नंबर है 1, ओके, नेम है ओके, लेकिन अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर आपका डेटा है जिसमें एक से ज्यादा वैल्यूज आपको सेंड करनी एरे के फॉर्म में, सो XML डज नॉट सपोर्ट द एरे. अगेन, XML फाइल साइज आर यूजुअली वेरी लार्ज ड्यू टू इट्स verbose nature and it is totally depend on again who is writing it. जैसे एग्जांपल अगर मैंने बोला कि एक स्टूडेंट को मैंने बोला चलो XML का कोड लिखो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन के लिए, तो हो सकता है वो बहुत बड़े बड़े टैग यूज करे, स्टूडेंट, रोल नंबर पूरा, और कोई हो सकता है उसको शॉर्ट में लिखे आर नंबर, नेम के लिए सिर्फ NM यूज करे. सो डिपेंड ऑन द यूजर कि वो टैग का नाम कितना बड़ा ले रहा है, छोटा ले रहा है, जिसकी वजह से XML फाइल की साइज जो है ये इंक्रीज हो सकती है. सो दीज आर सम लिमिटेशन and because of this limitation the new data transportation format has been coming in a market and which is again a very popular, which is called as the JSON, which already we have studied in your third year DBMS subject. So JSON is a JavaScript object notation. So JSON is a JavaScript object notation. JSON is a syntax for storing and exchanging a data. Again, it is the use of JSON is very similar to your XML. When you want to store a data, again you can use a JSON, or if you want to exchange a data between two different machines or two different operating system, again you can use a JSON instead of XML. Again, JSON is a self-describing and easy to understand. It is again very easy to understand as it is using a human readable format, and JSON is again very similar to your XML, that is it is a language independent. The syntax of JSON is here data is in a name value pair, जिसको हम बोलते हैं की वैल्यू पेयर, जो हमने MongoDB में भी ऑलरेडी पढ़ा था. सो नेम वैल्यू पेयर यानी अगर आपको रोल नंबर की वैल्यू देनी है, सो रोल नंबर कोलन यू आर जस्ट प्रोवाइडिंग द रोल नंबर वैल्यू. सेकेंड, डेटा इज सेपरेटेड बाय कॉमा. जब एक से ज्यादा की वैल्यू पेयर है तो आप उन दोनों के बीच में यूज करते हो कॉमा. So this is one key value pair, this is second key value pair, and both are separated with a comma. Third, curly braces to hold the object. यानी अगर ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, एक रो का डेटा है, तो ये पूरा एक curly bracket में क्या करते हो, उसको डालते हो. So it indicate it is a information regarding one row or one object. And last one is if you have a more than one object, means if you want to give the data in form of array, you require to use a square bracket. So here if you are sending a data of two students, so this is the object one in a one curly bracket comma, second object in a second curly bracket, and you are using a square bracket which indicate that it is a collection of more than one object or one key value pair. So this is a simple syntax. Now see the JSON versus XML.
how your JSON is more powerful than XML. So first is what are the similarity in JSON and XML, वो हम लोग देखेंगे. सबसे first, both JSON and XML are self describing, मतलब human readable है. आराम से आपको उस लैंग्वेज के सिंटैक्स वगैरह नहीं भी पता है तो भी सिर्फ पढ़ के आप समझ सकते हो कि इंफॉर्मेशन किसके रिलेटेड है. सेकेंड, बोथ JSON एंड XML आर हायरार्चिकल, वैल्यूज विद इन वैल्यूज. ओके, दोनों में आप हायरार्चिकल फॉर्मेट यूज कर सकते हो. बोथ JSON एंड XML कैन बी पास्ड एंड यूज्ड बाय लॉट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है तो बहुत सारे लैंग्वेजेस क्या है XML या JSON का फॉर्मेट यूज करते हैं. बट हाउ JSON इज बेटर देन XML, ये तो हो गया सिमिलैरिटी. लेकिन JSON में से क्या एडवांटेजेस है जो उसको XML से मोर पावरफुल बनाते हैं. वेरी फर्स्ट, JSON डज नॉट यूज एंड टैग. जैसे XML में हर एक डेटा को आपको टैग के साथ अटैच करना है. JSON में टैग्स है ही नहीं, डायरेक्टली की वैल्यू पेयर है. इसके लिए यहाँ पे स्टार्टिंग टैग एंडिंग टैग की जरूरत नहीं. इसके लिए JSON इज अ शॉर्टर. JSON में वही डेटा रिप्रेजेंट करना बहुत शॉर्टर वे में आप प्रेजेंट कर सकते हो. अगेन JSON इज वेरी क्विकर टू रीड एंड राइट. कोई भी मशीन को उसका डेटा रीड करना या डेटा को राइट करना ये बहुत इजी है, बहुत क्विक है. अगेन JSON कैन यूज अ array. So these are the advantages of JSON over XML. Next, we'll see the one example. If you want to code with a XML and if you want to code same thing in a JSON, so what is the length of your data? How it is get reduced? So very first is a XML example जिसमें अगर हमको employee का data देना है तो स्टार्टिंग में हमने employees करके एक रूट टैग लिखा, उसमें फर्स्ट एम्प्लॉय के लिए एक टैग लिखा जिसका फर्स्ट नेम जेसन है, लास्ट नेम जॉय है, एंड देन अगेन वन रिकॉर्ड एंडेड, सेकेंड रिकॉर्ड स्टार्टेड, उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखा, सेकेंड रिकॉर्ड एंडेड, एंड देन दिस इज द रूट टैग गेट एंडेड हियर. ओके, तो दो ही रो का, दो स्टूडेंट का या दो एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए इतना बड़ा कोड लिखना पड़ रहा है. सेम थिंग इफ यू आर गोइंग विथ अ JSON. So very simple, we are just giving that, we are giving the information of employees, डबल कोट में डाल दिया कोलन. We have used array. फर्स्ट array में मतलब फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट में फर्स्ट नेम डाल दिया, लास्ट नेम डाल दिया, कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट, इट इंडिकेट दैट दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एम्प्लॉय, कॉमा, सेकेंड information, your array get ended here and your open curly bracket of employee get ended here. तो यही डेटा जो XML में इतना ज्यादा कोड लगता है उसको बहुत शॉर्ट में आप JSON में लिख सकते हो, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन का टाइम और कॉस्ट क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है. So this is the end of our first unit. So in the first unit we have seen web development process. What are the issues when you are developing a website? Then what is the role of a website designer? Then HTML we have seen in very detail, all the tags almost we have seen of HTML. Then we have also studied the CSS with example. After CSS we have studied XML, DTD, XML schema and JSON. So this is the end of our first unit. Okay, you can find out the different questionnaires which are available for unit 1. So go on a theory on my blog and in web technology. Here you will find out unit wise question bank. So here all the questions you will find out, you will see that topic wise मैंने questions जो है वो यहाँ पे डाले हुए हैं. तो HTML के रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, या फिर CSS के रिलेटेड, या फिर XML DTD के रिलेटेड, JSON के रिलेटेड. So here you can find out the question and see that are you able to give the answer to almost every question or not. Then now we'll start with our second unit. Second unit is a combination of 3 different technologies, from which we are starting first a JavaScript, which is very important. सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा डिमांड है क्योंकि इसके ऊपर आपका जो Node.js जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वेब टेक्नोलॉजी में जो चल रहा है, इट इज यूजिंग अ itself JS. जहाँ पे भी JS आ गया इट इंडिकेट JavaScript. तो AngularJS अगेन अ पार्ट ऑफ JavaScript, Node.js अगेन अ पार्ट ऑफ JavaScript. तो बहुत सारे जो न्यू लैंग्वेजेस आ रहे हैं उसमें वो JavaScript को यूज करते हैं.
और हमारा जो 4th नंबर का प्रैक्टिकल है वेब टेक्नोलॉजी में, इट इज अगेन डिपेंड ऑन जावास्क्रिप्ट. सी फर्स्ट प्रैक्टिकल वी हैव सीन इज अ वेब सर्वर टॉमकैट का. सेकंड प्रैक्टिकल इज ऑफ HTML वेयर यू हैव टू डिजाइन योर वेबसाइट. थर्ड वन इज डिपेंड ऑन XML एंड CSS एंड DTD. थ्योरी में हमने देखा है, प्रैक्टिकल में हम लोग देखेंगे. एंड फोर्थ प्रैक्टिकल इज डिपेंड ऑन योर जावास्क्रिप्ट. तो जावास्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ना है आपको, 2 जगह पे उसको यूज करना है हमको. प्लस आगे हमारा जो 5th यूनिट है वहां पे भी इसका बेस हमको लगता है. ओके, एंड अगेन आई रिक्वेस्ट स्टूडेंट हैव अ प्रैक्टिस ऑफ ईच एंड एवरी कोड, क्योंकि हम बहुत सारे टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हैं. ओके, जैसे इसमें हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, जे क्वेरी पढ़ने वाले हैं, डॉम पढ़ने वाले हैं सेकेंड यूनिट में. थर्ड यूनिट में JSP एंड सर्वलेट. फोर्थ यूनिट में PHP एंड MySQL. तो हर एक का सिंटैक्स अलग है. Once you start with the second unit, you will forget some of the thing of first unit. When we start with PHP, you forgot the JavaScript, क्योंकि सबके syntax अलग है, तो आपको practice करना पड़ेगा. Otherwise, you will have little bit of confusion. तो थोड़ा practice करो बहुत अच्छे से, तो बहुत आराम से समझ जाएगा ये वाला subject. Okay, so second unit में का first part है JavaScript. So JS जिसको बोलते हैं, so JavaScript is a client side scripting language. See students, all the web technology languages are divided in 2 parts. One is a client side scripting language and second is a server side scripting language. HTML भी client side में आता है, XML भी client side में आता है, and JavaScript जो हम पढ़ रहे हैं, again it is a client side scripting language, but इट इज लिटिल बिट मोर पावरफुल देन HTML. HTML का काम सिर्फ डिजाइनिंग के लिए है, जावास्क्रिप्ट का काम एक्चुअल कोड करने के लिए है, इवेंट ड्रिवन एग्जीक्यूशन करने के लिए. इवेंट ड्रिवन यानी कि यूजर ने अगर कुछ बटन क्लिक किया तो क्या होना चाहिए. HTML में सिर्फ आप डिजाइन करते हो, फॉर्म को बटन डिजाइन करते हो, बट बटन पे क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए ये कोड आप नहीं लिख सकते हो. इफ एल्स लूप, यू कैन नॉट राइट डाउन फॉर लूप, if else loop, while loop, functions, procedures, all these things you cannot code in a HTML, but by using a JavaScript you can add that kind of programming language power in your HTML file. So it is a client side scripting language and for that it is a dynamic. क्यों dynamic है? क्योंकि user के input के ऊपर आपका output depend है. So your output is not static, it is a dynamic output. And again it is used for front end scripting language. Okay, इसको front end scripting language भी बोलते हैं. Client side को ही front end बोला जाता है, सर्वर साइड को हम बैक एंड बोलते हैं. आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा 2 टायर आर्किटेक्चर, 3 टायर आर्किटेक्चर. सो 2 टायर में आता क्या आता है? क्लाइंट एंड सर्वर, राइट. सो क्लाइंट मतलब फ्रंट एंड एंड सर्वर को हम क्या बोलते हैं? बैक एंड, जनरली जहाँ पे डेटाबेस हम लोग स्टोर करते हैं. अगर किसी ने अटेंडेंस डाला नहीं है चैट बॉक्स में, तो चैट बॉक्स में अटेंडेंस डाल दो. डोंट फॉरगेट टू राइट द अटेंडेंस इन अ चैट बॉक्स. So now what are the advantages of JavaScript? So very first is you can implement a form validation. जैसे अगर आपने एक HTML में कोई फॉर्म बनाया है तो उस फॉर्म को आप वैलिडेट कर सकते हो कि हर फील्ड में, जैसे मैंने बोला कि एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें आपको मोबाइल नंबर लेना है यूजर से, तो मोबाइल नंबर मतलब क्या? इंटीजर वैल्यू आना चाहिए. तो वो चेक करता है इंटीजर बोला है तो इंटीजर ही डाला है क्या यूजर ने, या फिर कैरेक्टर तो नहीं डाला है. अगर मैंने 10 कैरेक्टर 10 डिजिट बोले थे तो 10 से कम या 10 से ज्यादा तो नहीं है. ऑल काइंड ऑफ वैलिडेशन. अगर ईमेल है, जैसे ईमेल में अगर हमको लग रहा है कि @ सिंबल आना ही चाहिए. सो एवरी काइंड ऑफ वैलिडेशन on a input which you are taking from a user. So all kind of form validation you can perform by using JavaScript. Second, it can also use to react to user action. यूजर ने आपके वेब पेज पे अगर कुछ एक्शन लिया है, कोई बटन क्लिक किया है या फिर माउस इधर या उधर ओवर किया है, so you can also give some reactions or take a action on user activation. Then third is changing an image on moving mouse over it. आपको लग रहा है कि कोई एक इमेज और जैसे ही माउस उस इमेज के ऊपर जाता है तो वो इमेज का बैकग्राउंड या इमेज चेंज हो जाना चाहिए. यू कैन ऑल्सो लाइक content loading and changing dynamically is also possible.
यू कैन ऑल्सो परफॉर्म अ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन। तो आपको अगर कोई कैलकुलेटर डिजाइन करके आपका जो मशीन में जैसा कैलकुलेटर वर्क करता है एज दैट इज कैलकुलेटर आपको वर्क करवाना है आपके HTML के पेज पे, सो बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट यू कैन डू दैट। अगेन सेक्शन ऑफ अ पेज अपीयरिंग एंड डिसअपीयरिंग, आपका HTML का कुछ पार्ट आपको लग रहा है कि डिस्प्ले करना है, कुछ हाइड करना है, वो भी किसी बटन क्लिक पे मैंने शो क्लिक किया तो वो शो होना चाहिए, वापस हाइड क्लिक किया तो कुछ पार्ट हाइड हो जाना चाहिए। So that such kind of thing you can do with a JavaScript. Again, more what you can do with a JavaScript is again same, you can validate a form data. You can handle the different events. Event यानी क्या होता है, जैसे अगर ये वेब पेज है, इस वेब पेज पे कौन से इवेंट हो सकते हैं, जैसे माउस क्लिक कर रहे हो आप, माउस को डबल क्लिक कर रहे हो, माउस को यहाँ से वहां मूव कर रहे हो. So this can be the different events that you can handle. You can also read and write HTML element, and you can access and modify the browser cookies. Browser के अंदर जो cookies store होते हैं उसको आप access कर सकते हो, modify कर सकते हो. But what is not possible with the JavaScript? क्या चीजें ऐसे जो आप नहीं कर सकते हो? So very first is you cannot do database related operation. आपको लग रहा है कि डेटाबेस से कुछ वैल्यू रीड करके शो करनी है आपके वेब पेज पे, या वेब पेज पे यूजर से जो डेटा लिया है ये आपके डेटाबेस में स्टोर करना है, लाइक PHP डू, PHP एंड MySQL आपने बहुत बार कॉम्बिनेशन सुना होगा. सो PHP से हम डेटा लेते हैं और SQL में या MySQL में स्टोर करते हैं, बट इट्स नॉट पॉसिबल विद अ जावास्क्रिप्ट. जावास्क्रिप्ट इज अ क्लाइंट साइड or front end scripting language, so database related operation is not possible. Again, you cannot read or write to the files in the client. आपके मशीन पे जो अगर कोई फाइल है उस फाइल से डेटा रीड करना या उस फाइल में डेटा को राइट करना पॉसिबल नहीं. यू कैनॉट क्लोज अ विंडो दैट इट हैपेंड ओपन, hasn't open, and it cannot protect your page source or images. तो ये कुछ चीजें हैं जो जावास्क्रिप्ट नहीं कर सकता है. नाउ वेयर यू कैन write down a code of JavaScript in your HTML file. तो HTML फाइल में आप JavaScript का जो कोड है उसके लिए आप इधर हेड टैग के अंदर लिख सकते हो JavaScript का कोड, या फिर आप बॉडी टैग के अंदर भी लिख सकते हो. आप हेड टैग एंड बॉडी टैग दोनों में साइमल्टेनियसली भी लिख सकते हो. और फोर्थ इज you can write down a JavaScript code in a external file with a .js extension. जैसे हमने CSS का कोड एक्सटर्नल फाइल में लिखा था, DTD का कोड एक्सटर्नल फाइल में लिखा था. Likewise, you can write down a JavaScript code in a external file and you can give a reference of that file in the HTML head section. तो ये 4 जगह पे आप JavaScript का कोड लिख सकते हो. ओके, सो एक्चुअली हाउ टू राइट डाउन अ जावास्क्रिप्ट कोड. तो जहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है उसके ऊपर और नीचे आपको ये 2 टैग यूज करने हैं. अगर आप HTML में लिख रहे हो उसका कोड तो स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट करता है तो यहाँ से पता चलता है कि इसके बाद जो भी कोड है इट इज अ जावास्क्रिप्ट कोड. जैसे जावास्क्रिप्ट का कोड एंड हो जाता है यू हैव टू यूज अ /script. ये वाला टैग क्या करना है आपको वहां पे यूज करना रहेगा. Now we actually start writing a code. कैसे कोड को लिखना है वो अभी हम देखेंगे, छोटे छोटे एग्जाम्पल देखेंगे. then we'll go with a some like complex coding. So very first code is आपको अगर सिंपल एक हेलो मैसेज प्रिंट करना है बट यूजिंग जावास्क्रिप्ट. तो ये मैसेज को प्रिंट करने के लिए जैसे आप C या C++ में प्रिंट या printf यूज करते हो, तो यहाँ पे एक फंक्शन है, वो फंक्शन है डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन. ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, स्क्रिप्ट टैग मतलब जावास्क्रिप्ट का कोड कहाँ पे लिखा है, HTML के बॉडी टैग के अंदर हमने डाल दिया. तो यहाँ पे HTML स्टार्ट किया, हेड टैग की जरूरत नहीं इसके लिए, वो लिखा नहीं है मैंने. बॉडी टैग के अंदर आ गया हमारा स्क्रिप्ट टैग. स्क्रिप्ट टैग में हमको सिर्फ क्या प्रिंट करना है, हेलो मैसेज प्रिंट करना है. तो यहाँ पे डबल कोट के अंदर मैंने हेलो मैसेज डाल दिया. ओके, लेकिन इसको लिखने के लिए हम एक इनबिल्ट फंक्शन यूज कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट का, दैट इज अ डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन. और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट इंडिकेट इट इज अ फंक्शन, और उसमें हमने वैल्यू प्रिंट कर दी. स्क्रिप्ट टैग को एंड किया, बॉडी को एंड किया, HTML को एंड किया. अब ये मैं HTML के अंदर लिख रही हूँ, इसके मतलब ये फाइल को हमें स्टोर करेंगे .html एक्सटेंशन के साथ. अभी हम रन भी करके देखेंगे हर एक कोड. बट दिस इज हाउ यू कैन राइट डाउन अ जावास्क्रिप्ट कोड
इनसाइड अ बॉडी टैग, सेम कोड, सेम आउटपुट आपको चाहिए, लेकिन आपको ये कोड बॉडी टैग से उठा के आप सेम कोड कहाँ पे लिख सकते हो, हेड टैग के अंदर। ओके, कोड में कोई चेंज नहीं है, यहाँ से यहाँ के कोड में कोई भी चेंज नहीं है, लेकिन हमने ये कोड बॉडी टैग के बजाय HTML के कहाँ पे लिखा है, हेड टैग के अंदर डाल दिया है। ओके, सो सेम थिंग, स्क्रिप्ट टैग स्लैश स्क्रिप्ट, फंक्शन का नाम सेम, खाली हेड टैग में हमने उसको यूज किया है। पहले दोनों चीजें हम करके देखते हैं कोड में। देखो, यू कैन यूज एनी एडिटर, हम लोग आज नोटपैड में भी इसको करके देखते हैं, नहीं तो आप सबलाइम एडिटर में तो यूज कर ही सकते हो। सिंपल नोटपैड में भी हम लोग इसको करके देखते हैं। तो नोटपैड में हमको ये वाला कोड है, जस्ट इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। ओके, यहाँ पे हमने कोड को लिख दिया है, एंड नाउ फर्स्ट विल सेव दिस कोड। इसको फाइल को सेव किया, ओके, एंड सपोज ओके यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया। यहाँ पे याद रखो, अगर आप नोटपैड में लिख रहे हो तो यू हैव टू सिलेक्ट ऑल फाइल्स, क्योंकि यहाँ पे .html ऐसा कुछ आने नहीं वाला है, इधर .txt आएगा या फिर ऑल फाइल्स आएगा। सिलेक्ट ऑल फाइल्स, यहाँ पे मैंने डाल दिया नाम JS-1, कोई भी नाम दे दो, सपोज जावास्क्रिप्ट, इसके लिए JS1.html, एक्सटेंशन आने वाला है हमारा .html ही। ओके, सेव कर दिया। डेस्कटॉप पे गए, जहाँ पे हमने सेव किया था कोड, वहां पे जाके फोल्डर में जाके इसको खाली मैंने डबल क्लिक किया, तो क्या आया, सिर्फ जो मैसेज हमने यहाँ पे डाला था वो क्या हो गया, यहाँ पे प्रिंट हो गया है। ओके, सिंपल वो मैसेज क्या हो गया, आउटपुट में प्रिंट हो गया। यहाँ से जाके अगर मैंने मैसेज डाल दिया, यहाँ पे जाके रिफ्रेश किया, सो योर मैसेज इज गोइंग टू चेंज। सेम कोड अभी मैंने बॉडी टैग के अंदर लिखा हुआ था ये कोड, यहाँ पे हमने बॉडी टैग के बजाय इस कोड को डाल दिया हमने हेड टैग के अंदर। ओके, सेव किया, रन किया, कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, अब हेड टैग के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, और एक बॉडी टैग ऐड कर दिया, एंड इसमें और एक मैसेज प्रिंट किया। अब यहाँ पे कुछ मुझे लिखना है, तो यहाँ पे कुछ फंक्शन मुझे यूज करने की जरूरत नहीं, अगर मैं जावास्क्रिप्ट नहीं यूज कर रही हूँ तो ये सिंपल HTML का कोड यहाँ पे हो जाएगा। हमने कुछ तो मैसेज में चेंज कर दिया है यहाँ पे जाके रिफ्रेश किया, तो पहले ऊपर जो जावास्क्रिप्ट का पार्ट था वो पार्ट प्रिंट हो गया, और यहाँ पे आपने बॉडी के अंदर जो डेटा हम लोगों ने लिखा था वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो फर्स्ट ये हो गया, ये हो गया। ओके, नाउ सेम कोड में अभी हम कुछ चेंज कर रहे हैं। देखो, अभी बॉडी पार्ट से यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया, document.write के बजाय यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं अलर्ट। दिस इज अगेन अ न्यू फंक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट। ओके, अब इसको मैंने रिफ्रेश किया तो सेम मैसेज यहाँ पे क्या आया, एक अलर्ट बॉक्स आ गया, और अलर्ट बॉक्स में जो आपने मैसेज डाला था वो आ गया। ओके, ओके किया, मैसेज चला जाएगा। सो इट इज वन काइंड ऑफ अलर्ट मैसेज। किसी को आपको कुछ अलर्ट देना है, जैसे आपके वेब पेज पे आएगा, तो आप ये इसको यूज कर सकते हो। सो दिस इज अ अलर्ट फंक्शन। ओके, और दूसरा हमने क्या देखा है, दूसरा फंक्शन हमने देखा document.write फंक्शन। document.write ये बाय डिफॉल्ट आपके वेब पेज पे दिखता है, अलर्ट से आपको एक अलर्ट मैसेज आता है। तो पहले अलर्ट मैसेज आ गया, ओके प्रेस किया, उसके बाद सेकेंड जो आपने यहाँ पे लिखा था वो क्या हो गया, वहां पे प्रिंट हो गया। नाउ अगेन दिस इज नॉट अ इवेंट ड्रिवन। यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, आपका अलर्ट आ रहा है। अब मुझे क्या लग रहा है कि ये अलर्ट का जो मैसेज है या कोई भी एक मैसेज है, ये कब आना चाहिए, जब कोई एक बटन आपके वेब पेज पे दिखेगा और वो बटन आप क्या करोगे, प्रेस करोगे। ओके, तो यहाँ पे हम एक
सिंपल कोड करते हैं उसके लिए। यहाँ पे एक बॉडी टैग यूज कर लिया हम लोगों ने। ओके, और इसके अंदर हमने यूज किया है फॉर्म टैग। काफी लोगों ने लॉगिन का फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑलरेडी डिजाइन किया था। एक बार मैंने एक लेक्चर में बोला था कि वीडियो शेयर किया था, एंड आस्क स्टूडेंट्स टू लाइक कोड फॉर दैट। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक फॉर्म टैग यूज किया। यहाँ पे मैंने डाल दिया इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, और यहाँ पे डाल दिया बटन को एक वैल्यू, मतलब नेम प्रोवाइड करना है, तो वैल्यू इक्वल टू डाल दिया लाइक क्लिक, सिंपल। ओके, तो यहाँ पे हम रिफ्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, आपके HTML पेज पे एक बटन आया। लेकिन अब मैं इस जब बटन को क्लिक कर रही हूँ, नथिंग इज हैपनिंग व्हेन यू आर क्लिकिंग दिस बटन। व्हाट आई वांट कि जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे कुछ तो मैसेज प्रिंट होना चाहिए, कुछ तो अलर्ट आना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा एक इवेंट ऑन क्लिक इक्वल टू कि जैसे इस बटन पे क्लिक होगा तो एक फंक्शन हमने यहाँ पे क्या किया, कॉल किया। सो फंक्शन को मैंने एक फंक्शन का नाम ले लिया, सपोज F1 फंक्शन। कोई भी फंक्शन आप यहाँ पे फंक्शन का नाम आप यूज कर सकते हो। सो जैसे ही ये बटन क्लिक होगा ये फंक्शन को कॉल किया जाएगा। सो इट इज गोइंग टू फाइंड दिस फंक्शन नेम इन द जावास्क्रिप्ट। तो आपको हेड टैग के अंदर यहाँ पे क्या करना है, यू हैव टू स्टार्ट विथ योर स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट को स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट को एंड किया। ओके, इसके अंदर अभी हमको जो फंक्शन का नाम हमने यहाँ पे लिखा होगा, सेम फंक्शन यू हैव टू राइट डाउन हियर। इसमें हमने लिख दिया फंक्शन F1। फंक्शन के बाद आएगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, एंड देन वी आर गिविंग अ मैसेज यूजिंग अलर्ट, या फिर आप अलर्ट के बजाय डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे हमने डाल दिया like you have clicked button, simple। ओके, इसको रिफ्रेश किया। नाउ व्हेन आई एम क्लिकिंग दिस व्हाट हैपनिंग, इसके पहले कुछ नहीं हो रहा था बटन क्लिक के बाद। नाउ जैसे मैंने बटन को क्लिक किया एक अलर्ट मैसेज आया, और अलर्ट मैसेज पे क्या आया, यू हैव क्लिक्ड बटन। जो मैसेज मैंने यहाँ पे दिया था वो क्या आ गया, यहाँ पे आ गया। और जैसे मैं ओके प्रेस करूंगी मैसेज चला जाएगा। अब जितनी बार बटन को प्रेस करोगे यहाँ पे क्या होगा, दैट अलर्ट मैसेज विल हैपन। अभी अलर्ट के बजाय यहाँ पे आप और क्या यूज कर सकते हो, यू कैन यूज डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऑल्सो। ओके, रिफ्रेश किया, क्लिक किया, अलर्ट मैसेज की बजाय क्या आ गया, ये मैसेज आ गया। अगेन रिफ्रेश किया, यू विल गेट अ बटन। व्हेन यू क्लिक द बटन यू विल गेट अ मैसेज। सो डिपेंड ऑन योर बटन क्लिक, whatever the message you have printed it is going to show. So this is called as a dynamic। डायनामिक मतलब कुछ तो क्लिक होने के बाद कुछ तो हो रहा है। ओके, समथिंग इज हैपनिंग विच इज डिपेंड ऑन द यूजर एक्शन। तो हमने दो चीजें देखी, अलर्ट एंड डॉक्यूमेंट राइट। वैसे ही आप और एक चीज यूज होती है लाइक प्रॉम्प्ट। ओके, जैसे मैंने क्लिक किया तो प्रॉम्प्ट करने के बाद क्या हुआ, मैसेज तो आया, मैसेज के साथ आपको क्या आ गया, एक टेक्स्ट बॉक्स भी आ गया। सो प्रॉम्प्ट इंडिकेट यू आर गिविंग सम मैसेज विथ सम टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पे अगर हमने डाल दिया कि लाइक एंटर योर नेम, को रिफ्रेश किया तो यहाँ पे क्या आ गया, एंटर योर नेम लाइक दिस। ओके किया, बट ये नाम कहीं पे हमने स्टोर नहीं किया है। सो व्हाट यू कैन डू, अगेन यू कैन स्टोर द वैल्यू विच यू हैव टेकन इन समवेयर इन अ वेरिएबल। ओके, अभी HTML में आप कोई वेरिएबल नहीं डिक्लेयर कर सकते हो, बट इन अ जावास्क्रिप्ट यू कैन डू ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स विच यू कैन डू इन योर जावा, सिंपल जावा। मतलब आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर सकते हो, आप ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हो, you can create a function, you can like use all the arithmetic operations also। तो बहुत सारी चीजें जो आप क्या कर सकते हो वहां पे
यूज कर सकते हो लाइकवाइज। तो आपको लग रहा है कि जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो हम लेंगे var. var is used when you want to declare a variable in javascript. और जावा और जावास्क्रिप्ट में और एक डिफरेंस है, इन अ जावा यू हैव टू गिव द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल ऑल्सो, कि जैसे अगर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया a, तो आपको देना पड़ता है कि वो इंटीजर है, स्ट्रिंग है, टाइप, डेटा टाइप देना पड़ता है। बट जावास्क्रिप्ट इज अ लाइट वेट लैंग्वेज, तो लाइट वेट लैंग्वेज में आपको कोई भी वेरिएबल के लिए डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं होती है। आप जो डेटा उसमें स्टोर करोगे ऑटोमेटिकली वो वेरिएबल उस डेटा टाइप का बन जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज लाइट वेट। तो यहाँ पे जैसे हमने एक वैल्यू स्टोर कर दी 10 एंड यहाँ पे हमने डाल दिया var एंड b इक्वल टू सपोज 20, ये वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दी एंड हियर var c इक्वल टू सिंपल a प्लस b किया एंड जो भी आउटपुट है जो c में स्टोर हुआ है आई वांट टू शो दैट आउटपुट। तो यहाँ पे हमने डाल दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड वेरिएबल जो है वैल्यू c, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यूज कर लिया। अगेन रिफ्रेश किया, क्लिक किया तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, c की जो वैल्यू है वो यहाँ पे एडिशन के बाद आ गई। नाउ हियर आई हैव गिवन दिस वैल्यू इन बिल्ड, द 10 एंड 20 ये वैल्यू हमने दिया है कोड के अंदर। आपको लग रहा है कि ये वैल्यू जो है a की और b की आपको यूजर से लेनी है, ओके तो अब यूजर से लेनी मतलब आपको क्या लिखना पड़ेगा, HTML के अंदर आपको 2 टेक्स्ट बॉक्स लेने पड़ेंगे और वो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू आपको यहाँ पे रीड करनी पड़ेगी। सो यू कैन यूज अ 2 टेक्स्ट बॉक्स, you can read the value of that text box in a function and by reading that value you can like give the output depend on the user. तो यहाँ पे अगर सपोज हम लोगों ने ले लिया input type equal to सिंपल, अगर हम लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स, सो इनपुट टाइप इज टेक्स्ट एंड हर एक टेक्स्ट बॉक्स को आपको नेम देना है क्योंकि उसके नाम से आप उसकी वैल्यू क्या करने वाले हो, रीड करने वाले हो। सो यहाँ पे आपने सपोज दे दिया कि नाम दे दिया हमने T1। ये वाला कोड हटा देती हूँ। अभी हमको क्या करना है, इस टेक्स्ट बॉक्स की जो वैल्यू है उसको रीड करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे फंक्शन डॉक्यूमेंट डॉट। अब ये वैल्यू हमारे इस इनपुट बॉक्स से रीड होने वाली जिसका नाम T1 है, बट ये इनपुट बॉक्स किसके अंदर है, कौन सा टैग के अंदर है, फॉर्म के अंदर। तो इस फॉर्म को भी हमको नाम देना पड़ेगा। सपोज इस फॉर्म को हमने नाम दे दिया फॉर्म 1, ओके तो यहाँ पे आएगा डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म 1 डॉट फॉर्म 1 के अंदर टेक्स्ट बॉक्स का नाम है T1 डॉट उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो यूजर ने वैल्यू दी होगी वो वैल्यू को हमको रीड करना है। सो डॉट वैल्यू, और ये चीज हम क्या कर रहे हैं, किसी वेरिएबल में स्टोर करने वाले, वेरिएबल में स्टोर की, और यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू को क्या किया, प्रिंट कर दिया, सिंपल। ओके रिफ्रेश किया, 2 टेक्स्ट बॉक्स आ गया, यहाँ पे डाल दिया, सपोज मैंने कुछ नाम डाल दिया एंड जैसे इसको क्लिक करेंगे तो जो नाम आपने डाला होगा यहाँ पे वो नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इफ यू वांट टू अटैच सम मैसेज with your name, so you can like use like you have entered and then like this, तो यहाँ पे आ गया you have entered और जो वैल्यू आपने डाली होगी। तो डिपेंड ऑन दिस, अगर यहाँ पे मैंने कुछ दूसरा डाल दिया लाइक आकाश, सो ये देखो आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड है, नाउ इट इज कॉल्ड एज अ डायनामिक, बिकॉज ये जो आउटपुट है, ये आउटपुट में ये वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड है, यूजर यहाँ पे क्या इनपुट दे रहा है उस इनपुट के ऊपर है। यहाँ पे अगर रेड डाल दिया तो आउटपुट में भी यहाँ क्या आ जाएगा, रेड। सो इट इज कॉल्ड एज अ डायनामिक। ऑन ऑल दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ योर जावास्क्रिप्ट। तो सिंपल हमने क्या कैसे किया, प्रिंट बॉडी के अंदर फॉर्म टैग लिया, फॉर्म टैग में हर एक चीज को हमको नाम देना पड़ेगा बटन को छोड़ के।
फॉर्म टैग को नेम दे दिया फॉर्म 1, देन इनपुट टाइप एक टेक्स्ट बॉक्स लेना था, इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, उसको भी एक नाम दे दिया T1। अगेन इनपुट टाइप बटन, कि बटन पे क्लिक होने के बाद ये फंक्शन कॉल होना चाहिए, सो इनपुट टाइप बटन। उस बटन पे क्या टेक्स्ट, क्या कैप्शन लिख के आना चाहिए, तो जैसे देखो यहाँ पे बटन पे जो कैप्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, क्लिक। तो इस कैप्शन को हम बोलते हैं वैल्यू। वैल्यू इंडिकेट कि व्हाट वैल्यू यू वांट टू शो ऑन दैट बटन। और जैसे ये बटन क्लिक होगा तो हम बता रहे हैं कि व्हेन अ बटन इज क्लिक, सो ऑन क्लिक ऑफ दैट बटन द फंक्शन यू नीड टू कॉल इज अ F1 फंक्शन। F1 फंक्शन कॉल होने के बाद हमने उस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू रीड करके एक वेरिएबल में डाली, और उस वेरिएबल की वैल्यू को हमने यहाँ पे क्या किया है, प्रिंट किया हुआ है। Okay, so everyone you just try this code. It requires simple your notepad, उसको .html से सेव करके इसको ब्राउजर पे रन करके देखो। ये बहुत छोटा कोड है, ये आएगा तो ही आगे जो हम इसके कॉम्प्लेक्स कोड देखने वाले हैं वो आपको आएगा। और अगर आपको कोई डिफिकल्टी आता है, सो यू विल जस्ट